ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ الحمدللہ۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ریاستی وزیراعلیٰ KCR کی قیادت میں ریاست ترقی کی راہ پر گامزن۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی انہوں نے کوٹگیر منڈل میں ڈبل بیڈ روم مکانات کو استفادہ کنندگان میں کیے حوالے۔ بروز آفتاب 5 مارچ سے ماہ شعبان کا آغاز، 18 مارچ کو ہوگی شب برات۔ کاماریڈی ضلع مدنور منڈل کی سرکاری اقامتی اسکول کی طالب علم شریشا کی نعش اسکول کی واٹر ٹینک میں برآمد، محکمہ پولیس کی جانب سے تحقیقات کا آغاز۔ عرس شریف حضرت سید غازی تاتار شاہ قادری یمن الحق رحمۃ اللہ علیہ بن اللہ شریف کا آغاز، عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل۔ بودھن کی سرکاری اسکول ٹیچر رضیہ بیگم کی فرزند نظام الدین کے ساتھ ایک عجیب اتفاق، پہلے لاک ڈاؤن اور اب پھنسے یوکرین میں مدد کے لیے کی وزیر اعظم و چیف منسٹر سے کی اپیل۔ آرمور کی ترقی کے لیے مزید فنڈز مختص کرنے پر PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA و TRS ضلعی صدر جیون ریڈی نے CM KCR، ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی و متحدہ ضلع MLC کے کویتا سے کیا اظہار تشکر۔ شہر میں ترقیاتی کاموں کا آغاز، یوم خواتین کے موقع پر مختلف تقاریب میں شرکت و تحفات کی تقسیم۔ اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کا مصروف ترین دورہ نظام آباد۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ماہ شعبان کی آمد، فضیلت ماہ شعبان پر روشن ٹی وی کی خصوصی پیشکش۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ فرمائے، ان میں سے شعبان کو چن لیا اور اسے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا، لہذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، گناہ گار بخشش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اسی لیے شعبان کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت انیس رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں
एहतराम रमजान की वजह से बहुत सी नेकियां फैलती है और रमजान को रमजान इसलिए कहा जाता है कि इस माह में बहुत से गुनाह जला दिए जाते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गनियतुल तालिबीन में बयान फरमाते हैं, लफ्ज शाबान 5 हरफों का मजमुआ है, शीन ऐन बे अलिफ और नून। शीन शरीफ से, ऐन उलू अजमत बुलंदी से, बाब नेकी और तकवा से, अलिफ उल्फत और मोहब्बत से और नून नूर से माकू से। इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को ये 4 चीजें अता होती है। ये वो महीना है जिसमें नेकियों के दरवाजे खुल जाते हैं और बरकत का नुज़ूल होता है, गुनाहगार छोड़ दिए जाते हैं और बुराइयां मिटा दी जाती है और मखलूक में सबसे अफजल और बेहतरीन हस्ती हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में कसरत से हदिया दुरूद सलाम भेजा जाता है। सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद गाजी ताता शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह बिनोला शरीफ का जोश खरोश के साथ एहतिमाम। 3 रोजा उर्स शरीफ में कसीर तादाद में शिरकत करने की सज्जदगान दरगाह ने की अपील। हज़रत सैयद गाजी ताता शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह यमन अलहक, जिनकी दरगाह मुबारक खादिराबाद बिनोला शरीफ नवीपेट मंडल में मौजूद है, आप हजरात के मुताबिक कई वाक़यात व करामात मशहूर है और न सिर्फ जिले रियासत बल्कि हिंदुस्तान में हजरत से अक़ीदत रखने वाले अवाम की एक बड़ी तादाद है और हजरत का उर्स शरीफ हर साल माह शाबान की 1 तारीख से आगाज होता है। हर साल की तरह इस साल भी सज्जदगान दरगाह शरीफ पीर सैयद अफशान शाह कादरी अल तातार अल मारूफ गौस सैयद नहज शाह कादरी अल तातार अल मारूफ अब्दुल वसीम सैयद अब्दुल जलील कादरी अल तातार की निगरानी में अमल में लाया जा रहा है और 1 शाबान को हस्बे रिवायत नेहरू नगर सारंगपुर से संदल मुबारक का एहतिमाम किया गया और पैदल ही सफर करते हुए संदल मुबारक दरगाह शरीफ तक पहुंचाया गया। इसी तरह से 2 शाबान को फातिहा ख्वानी और 3 मार्च को खुसूसी महफिल समा का भी एहतिमाम किया जा रहा है, जिसमें औरंगाबाद के मशहूर मारूफ अमीर कव्वाल तशरीफ ला रहे, जिसमें कसीर तादाद में शिरकत करने की इन्होंने अपील की। बरोज़े हफ्ता 5 मार्च से माह शाबानुल मुअज़्ज़म का आगाज। 18 मार्च बरोज़े जुम्मा को होगी शब बरात। 4 मार्च बरोज़े जुम्मा को चांद नजर नहीं आने और रजब के 30 दिन मुकम्मल होने के सबब बरोज़े हफ्ता 5 मार्च से 1 शाबानुल मुअज़्ज़म होगा और इसी तरह अदम रुवायत के सबब शब बरात इस माह की 18 तारीख बरोज़े जुम्मा को वाक़ होगी, जिसका मुल्क के मुख्तलिफ उलमा किराम व मदारिस के जिम्मेदारों ने ऐलान किया। आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र मुफ्त अतिया कैंप का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अमल में लाया। आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र मुकामी रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए मुफ्त अतिया कैंप का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। बातज़ा अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि शहर में कई मुफ्त अतिया कैंप मुनक़िद किए गए, लेकिन आज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर खुद ख़वातीन की जानिब से खून का अतिया देने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इस प्रोग्राम में मियां नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कॉर्पोरेटर्स व दीगर कायदीन ने शिरकत की। स्कूल टीचर रजिया बेगम के फर्जंद निजामुद्दीन अमान यूक्रेन में बहिफाजत वापसी के लिए वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर से अपील। निजामुद्दीन अमान MBBS की तालीम हासिल करने के लिए यूक्रेन में मुक़ीम थे। हालात जंग के बाइस अब वहाँ फंस गए हैं। वाज़ेह रहे कि सरकारी स्कूल टीचर रजिया बेगम ने फर्स्ट लॉकडाउन में अपने बेटे को बहिफाजत वापस लाने के लिए स्कूटर पर 1400 किलोमीटर का सफर तय करते हुए मुल्क भर में शोहरत हासिल की थी। निजामुद्दीन अमान इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। स्कूल टीचर रजिया बेगम ने बताया कि निजामुद्दीन अमान से इनकी फोन पर बातचीत हुई और वो ठीक है। इन्होंने हुकूमत हिंद और तेलंगाना हुकूमत बिलखुसूस चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो इनके फर्जंद निजामुद्दीन अमान को यूक्रेन से वतन वापस लाने के लिए तेज रफ्तार इक़दाम करे। నేను ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్కి నా తరఫున అపీల్ ఉంది. అంటే మా పిల్లలకు ఎంతమంది ఇక్కడ నుంచి స్టూడెంట్స్ అక్కడ చదవడానికి వెళ్ళినరో వాళ్ళకు సేఫ్గా ఇండియాకు వాపస్ తీసుకురావాలి అని నరేంద్ర మోదీకి ఎస్పెషల్లీ నా మెసేజ్ ఉంది. మా పిల్లలకు ఎట్లా పోయినరు అంటే వాళ్ళ డ్రీమ్ కోసం అక్కడ పోయినరు కదా, వాళ్ళు వచ్చేయాలి అని అట్లానే అక్షేమంగా మన కంట్రీకి వాపస్ తీసుకురావాలి అని अल रशीदिया होटल का अरसापल्ली में शानदार आगाज। मोहम्मद इदरीस खान, बबलू खान, मोहम्मद मुनव्वर अली, सैयद जावेद मेहमान खुसूसी अब्दुल रशीद ने किया मेहमानों का इस्तकबाल। कसीर तादाद में मेहमानों की शिरकत।
الرشیدیہ ہوٹل کا آج بروز جمعہ 2 بجے دن ارسپلی نظام آباد میں شاندار افتتاح مولانا ذاکر کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شہر کے ڈپٹی میئر محمد ادریس خان، ہردل عزیز TRS کارپوریٹر ببلو خان، محمد منور علی انچارج مجلسی کارپوریٹر ڈویژن نمبر 31، ذیشان رضوی بیورو چیف روشنی ٹی وی، حرکیاتی نوجوان قائد سید جاوید TRS پارٹی کیمپیننگ سیکرٹری نے شرکت کرتے ہوئے پروپرائٹر الرشیدیہ ہوٹل عبدالرشید کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ عبدالرشید نے تمام مہمانوں کا ہوٹل میں خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی شال پوشی گل پوشی کی اور تہنیت پیش کی۔ افتتاحی تقریب میں کثیر تعداد میں علاقے کے نوجوانوں نے بھی شرکت کی۔ عبدالرشید نے بتایا کہ الرشیدیہ ہوٹل واقع ارسپلی نظام آباد میں لذیذ ذائقہ دار گرما گرم تہاری بریانی کے علاوہ مٹن شامی روزانہ گاہکوں کے لیے تیار رہے گی۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن اسپیشل بگارا دالچا بھی دستیاب رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پارسل کا خصوصی انتظام رکھا گیا ہے۔ آرڈر کے لیے عبدالرشید کے سیل نمبر 7893841137 اور 8184871010 پر رابط پیدا کریں۔ اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے شہر کا دورہ کرتے ہوئے ناگرام میں واقع مندر کے پاس بیٹی روڈ تعمیری کاموں سے متعلقہ اراضی پر بھومی پوجا انجام دی۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے شہر کا دورہ کرتے ہوئے ناگرام میں واقع مندر کے پاس بیٹی روڈ تعمیری کاموں سے متعلقہ اراضی پر بھومی پوجا انجام دی۔ باتزہ اربن MLA بیگالہ گنیش گپتا نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں CM KCR کی کامیاب ترین قیادت میں مختلف ترقیاتی فلاحی اسکیمات تیزی کے ساتھ روبے عمل میں لا کر فوری طور پر پائے تکمیل پر پہنچاتے ہوئے مقامی عوام کو راحت فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں میاں نیتو کرن کارپوریٹر TRS پارٹی سے وابستہ قائدین و دیگر نے شرکت کی۔ آرمور حلقے کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے تحت مختلف موضوعات و وارڈ میں CC روڈ تعمیری کاموں کے لیے 7,53,00,000 فنڈز کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے اس سے متعلقہ جیو کو ضلعی TRS صدر PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی نے کیا اظہار۔ ضلعی TRS صدر PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی نے آرمور حلقہ اسمبلی کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے مختلف موضوعات و وارڈ میں CC روڈ تعمیری کاموں کے لیے 7,53,00,000 فنڈز کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے جیو جاری کرنے کی بنا پر مختلف موضوعات میں مقیم عوام نے CM KCR، ریاستی وزیر KTR، ریاستی وزیر ایرابیلی دیاکر راؤ، ویملا پرشانت ریڈی، MLC کے کویتا، آرمور TRS صدر PUC کمیٹی چیئرمین و MLA جیون ریڈی کو دل کے گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ بانسواڑہ شہر کے ایریا ہاسپٹل سے ماتا ششو ہاسپٹل کے ایریا ہاسپٹل اسٹیل اوور برج کی تعمیر سے متعلقہ کاموں کے لیے 3 کروڑ روپے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کا ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی نے کیا اظہار۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی ضلع کاماریڈی کا دورہ کرتے ہوئے بانسواڑہ شہر میں اسپیشل ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت منظور کردہ 3 کروڑ مالیاتی رقم سے بانسواڑہ ایریا ہاسپٹل سے ماتا ششو ہاسپٹل کی روڈ کے بالائی حصے سے تعلق رکھنے والے فٹ اوور برج کی تعمیر سے متعلقہ اراضی پر سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا، شہر کے ایریا ہاسپٹل سے ماتا ششو ہاسپٹل سے متعلقہ روڈ خستہ حالت میں ہونے کے سبب مریضوں اور محکمہ صحت کے عہدیداران کو ہونے والی دقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایریا ہاسپٹل سے ماتا ششو ہاسپٹل تک اسٹیل اوور برج تعمیر کرنے کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت 3 کروڑ روپے کی منظوری عمل میں لانے کے علاوہ ٹینڈر سے متعلقہ کام مکمل کرتے ہوئے عنقریب تعمیری کاموں کو افتتاح عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہندوستان کے واحد سیکولر لیڈر گزرے جنہوں نے تمام مذاہب کے عوام کے حقوق کی پاسداری رکھتے ہوئے دستور تشکیل دیا۔ پرکاش امبیڈکر کا خطاب۔ بینسا مستقر میں آج پرکاش امبیڈکر کے ہاتھوں بس اسٹینڈ کے روبرو بابا صاحب امبیڈکر کے نئے مجسمے کی نقاب کشائی عمل میں آئی۔ باتزہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرکاش امبیڈکر نے کہا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہندوستان کے واحد سیکولر لیڈر گزرے جنہوں نے تمام مذاہب کے عوام کے حقوق کی پاسداری رکھتے ہوئے دستور تشکیل دیا۔ بابا صاحب کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تقریب میں نوجوانان سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے معاشرے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بابا صاحب امبیڈکر کی طرح قوم و وطن کی خدمت کرنے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر تمام سیاسی، سماجی، مذہبی رہنماؤں کے علاوہ دلت سماج کی ایک بڑی تعداد نے دور دراز کے مقامات سے آ کر اس پروگرام میں شرکت کی۔
जिले सतह पर इस माह की 12 तारीख को मुनक़िद होने वाले मेगा कौमी लोक अदालत से फरीक़ैन व मुतासरीन से इस्तिफादा हासिल करने का सेकंड एडिशनल जिले जज CH पंचाक्षरी ने किया इज़हार। जिले निज़ामाबाद की इमारतुल अदलिया में वाक़े DLSA भवन में जिले जज CH पंचाक्षरी ने K6 चैनल से खिताब करते हुए कहा कि कौमी लोक अदालत का मकसद अवाम के आपसी तनाज़ात को मुस्तकिल तौर पर हल करने के अलावा घरेलू तशद्दुद, बैंक बकायाजात की वसूली, मोटर गाड़ियों के नुकसानात, मुजरिमाना कंपाउंड डबल, जमीन पर कब्जा, रेवेन्यू, बिजली चोरी, एक्साइज और मुफ्त कानूनी चाराजोई के मुकदमात को आपस में खुशसलूबी से निमटने के मकसद के तहत इसी माह की 12 मार्च को मेगा कौमी लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना सुदूर तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव ने झारखंड के CM हेमंत सोरेन से मुल्क में होने वाली तब्दीलियों के अलावा ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना सुदूर तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव ने झारखंड CM हेमंत सोरेन से इजलास मुनक़िद करते हुए मुल्क में होने वाली तब्दीलियों व ताज़ा तरीन सियासत से वाबस्ता सूरत हाल पर बातचीत करने के अलावा मुस्तक़बिल की सियासत पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास से कबल CM KCR ने रांची के गिरिजन कारकुन प्रसा मुंडा के फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश की और इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इसी तरह से वादी गलवान में चीनी फौजियों के साथ होने वाली झड़प में शहीद होने वाले फौजी के अफराद खानदान को इमदाद हवाले की जाएगी। इस इजलास में CM KCR के शरीक हयात शोभा, रियासती मनसूबाबंदी एसोसिएशन के नायब सदर विनोद कुमार, रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड, MP संतोष कुमार, MLC के कविता के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। मदनूर मंडल के गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल के पानी के टैंक में गिरकर फौत होने वाली तलबा की निजाम सागर मंडल मखदूमपुर के तौर पर शिनाख्त। निजाम सागर मंडल की मखदूमपुर गांव से ताल्लुक रखने वाली लड़की तालिबा शिरीशा, जो कि मदनूर मंडल के गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल की पानी की टैंक में गिरने के बायस फौत होने के मुतालिक हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजमीन जाए मुकाम पर पहुँच कर हादसा व दीगर वजूहात के मुतालिक तहकीकात करने का इजहार किया। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े लिंगामैया गुट्टा व सुभाष नगर इलाकों में रोजगार तमानियत स्कीम के फंड से रूबे अमल में लाए जाने वाले CC रोड ड्रेनेज की तामीर से मुताल्लिका कामों का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े लिंगामैया गुट्टा में सुभाष नगर इलाकों में रोजगार तमानियत स्कीम के फंड से रूबे अमल में लाए जाने वाले CC रोड ड्रेनेज की तामीर से मुताल्लिका कामों का जायजा लेते हुए तामीरी कामों को मियारी तरीके से जल्द जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ओहदेदारान को ताकीद की और बताया कि अवाम के लिए काबिल इस्तेमाल कामों के लिए ही फंड्स का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने के बायस अवामी फंड का ही सही इस्तेमाल होने का इजहार किया। और इन्होंने मजीद बताया कि बाज़ मुकामात पर होने वाले तरक्याती कामों के दौरान मुलाजिमत करने वालों पर पुलिस केस दर्ज करने की हिदायत दी और कहा कि हुकूमत की जानिब से मुनक़िद होने वाले तरक्याती कामों में किसी को भी मुदाखलत व रुकावट करने का कोई हक नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी तरक्याती कामों में मदाखलत करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने के लिए ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। जिले निजामाबाद की इमारतुल अदलिया के अहाते में वाक़े जदीद इमारत में क़याम अमल में लाए गए फाक्सो कोर्ट का जिले जज सुनीता कुंचाला ने DLSA सेक्रेटरी विक्रम व दीगर एडवोकेट के हमरा लिया जायजा। जिले जज सुनीता कुंचाला ने DLSA सेक्रेटरी विक्रम व दीगर एडवोकेट के हमरा जिले की इमारतुल अदलिया के अहाते में वाक़े जदीद इमारत में क़याम अमल में लाए गए फाक्सो कोर्ट का जायजा लेते हुए दीगर कामों के मुतालिका जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत जारी करते हुए बताया कि इस माह की 5 तारीख को डिस्ट्रिक्ट चोट पोलियो जस्टिस के हाथों फाक्सो कोर्ट का इफ्तिताह अमल में लाने का जिले जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने कोटगिर मंडल के पोतंगल देहात में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के अलावा मुस्तहिकीन को डबल बेडरूम मकानात किए हवाले। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने कोटगिर मंडल का दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर पोतंगल देहात में डबल बेडरूम मकानात व जायद कमरे जमात से मुताल्लिका राजी पर संग बुनियाद रखने के साथ साथ जदीद तामीर करदा 60 डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिक अवाम को हवाले करने के बाद रैतु वेदिका भवन व फंक्शन हॉल में दीगर तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद CM KCR की कामयाब दूरंदेशी के तहत रियासत तेलंगाना में कई मुनफरिद स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने के अलावा बिला लिहाज मजहब व मिलत से वाबस्ता तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिकीन को डबल बेडरूम मकानात हवाले करने का इजहार किया।
ट्रैफिक ई चलानात में रियायत से भरपूर फायदा उठाए, कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नगराजू का बयान। ट्रैफिक ई चलानात में निजामाबाद जिले में मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद पर भारी जुर्माने आयद किए गए। रियासती हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक ई चलानात पर रियायत दी गई, जो 1 मार्च से 31 मार्च तक रखी गई। इस रियायत से अवाम भरपूर फायदा उठाए। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों से कोविड वबा से अवाम परेशान हाल है और इस ज़िमन में ट्रैफिक पुलिस के खवायद पर मोटर गाड़ियों के मालिकिन के खिलाफ वर्जी करने पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुर्माने आयद किए गए। लेकिन रियासती हुकूमत ने 1 माह के लिए ई चलानात पर रियायत देने का ऐलान किया और रियासती हुकूमत ने ये भी ऐलान किया कि ट्रैफिक खवायद पर अमलावरी करे और खुद अपनी हिफाजत करते हुए अपनी रियासत को तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए कमर बस्ता हो जाए, वरना फिर ट्रैफिक ई चलानात भरने के लिए तैयार हो जाए। हफ्ता 10 दिन में घरेलू पकवान गैस की कीमतों में 50 रुपए तक का इजाफा मुतवक्के। रूस और यूक्रेन जंग का असर, 5 रियासतों के इंतखाबात का अमल मुकम्मल होने के बाद कीमतों पर असर। हफ्ता 10 दिन के दौरान घरेलू पकवान गैस की कीमतों में फी सिलेंडर 50 रुपए तक इजाफा होने का कौमी इम्कानात है। मंगल को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में ऑयल कंपनियों की जानिब से अचानक फी सिलेंडर की कीमत पर 105 रुपए और 5 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 27 रुपए का इजाफा कर दिया। ताहम घरेलू पकवान गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। गुज़िश्ता 4 माह के पकवान गैस 14.2 किलो गैस सिलेंडर में इजाफा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की बमशमूल 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के बाद कीमतों में इजाफे का कौमी इम्कान है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का दुनिया में ईंधन की पैदावारी पर असर पड़ा है। मुल्क में ब्लैक डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इंतखाबी मरहले के अख्ताम के बाद पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफा करने की मरकजी हुकूमत की जानिब से ऑयल कंपनियों को इजाजत दे देने की इत्तलात है। हैदराबाद में घरेलू पकवान गैस 14.2 किलो फी सिलेंडर कीमत 952 रुपए है, जबकि आदिलाबाद में 976.50 रुपए। 6 अक्टूबर 2021 से घरेलू पकवान गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र डोमेस्टिक गैस की कीमतों में 50 रुपए तक इजाफा होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। कमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफे के बाद हैदराबाद में 19 किलो कमर्शियल गैस फी सिलेंडर की कीमत 2086 रुपए से बढ़कर 2191 रुपए तक पहुंच गई है। मुस्तकबिल के अयाम में हर एक दलित बेहतर कारोबार शुरू करके अपनी जिंदगी में खुशहाली लाने का गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी के दफ्तर में कलेक्टर जितेश पाटिल की सदारत में मुनक़िद इजलास में गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा दलित बंधु स्कीम से मुस्तहिक़ीन इस्तिफादा करे, बेहतर कारोबार शुरू करके अपनी जिंदगी में खुशहाली लाए और तमाम अहले अफराद इस दलित बंधु स्कीम से फायदा हासिल करने का इजहार किया। इस मौके पर कलेक्टर जितेश पाटिल ने कहा कि दलितों की जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए ही हुकूमत तेलंगाना ने दलित बंधु स्कीम को मुतारफ करने का इजहार किया। रुकने असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता के हाथों ANM वर्कर्स में साड़ियों की तकसीम। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रुकने असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता ने AM आशा वर्कर्स के एजाज में एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इन्हें तहनीत पेश की। न्यू अम्बेडकर भवन में आशा वर्कर्स ANM को तहनीत पेश की और इस मौके पर मुखातिब करते हुए रुकने असम्बली मिस्टर बेगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि कोविड के मौके पर ANM आशा वर्कर्स ने दिलेरी के साथ काम करते हुए कई अफराद की जान बचाने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर TRS कायदीन मोहम्मद अब्दुल बारी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी TRS पार्टी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఈసారి ముందే కంప్లీట్ చేసుకోవాలా అని చెప్పేసి నేను 4, 5, 6 తేదీ 3 రోజులు చేయాలనుకున్నాను. మొదటిసారిగా నేను అనుకున్నాను ఆశా వర్కర్లు, అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆర్పీ ఈ ముగ్గురు కలిపి ఒకే వేదిక మీద చేయాలని ఆలోచిస్తే మళ్ళీ ఆలోచన వచ్చింది ఏంటంటే ఎవరి గౌరవం వాళ్ళకి దక్కాలి, ఎవరి సేవలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అందుకోసం 3 రోజులు నిరంతరంగా చేద్దాం అని చెప్పి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब दुरंदेशी के तहत रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजन होने का रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने मीडिया के जरिए किया इजहार। रियासती वजीर इमारत और शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर मंडल की मुकाम पर वाक़ रिहाइशगाह में मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि कोरोना वबा जैसी कहर के बावजूद भी रियासत तेलंगाना का GDP मुल्क में अव्वलीन मुकाम हासिल होने का इजहार करते हुए कहा कि रियासत की फीकस आमदनी 2014 में 5 लाख करोड़ रुपए होने के बिना पर आज 11
लाख करोड़ की तरक्की हुई है। इसी तरह से रियासत की फीकस आमदनी 2014 में 1,28,000 है तो आज 2,78,000 तक का इजाफा होने का इजहार किया। ఇంత గొప్పగా అభివృద్ధి పనులు ఇవాళ జరుగుతూ ఉన్నాయి. మండలాల వారీగా తీసుకుంటే బాల్కొండ మండలానికి 2,65,00,000 రూపాయలు, ముప్కాల్ మండలానికి 1,55,00,000 రూపాయలు, మెండోరా మండలానికి 1,80,00,000 రూపాయలు, వేల్పూర్ మండలానికి 6,10,00,000 రూపాయలు, భీమ్గల్ మండలానికి 2,85,00,000 రూపాయలు. అంటే టౌన్ ఉండదు, భీమ్గల్లో టౌన్ తీసేస్తే టౌన్ కాకుండా వేరే ఊర్లు అన్నట్టు. కమ్మరిపల్లి మండలానికి 3,65,00,000 రూపాయలు, మోర్తాడ్ మండలానికి 1,95,00,000 రూపాయలు, ఏరుగట్ట మండలానికి 1,45,00,000 రూపాయలు, మానాల ప్లస్ మానాల చుట్టుపక్కల ఉన్న 8 గ్రామ పంచాయతీలు కలిపి మొత్తం 9 గ్రామ పంచాయతీలకి 1,05,00,000 రూపాయలు. ఇట్లా 23,05,00,000 రూపాయలు సీసీ రోడ్ల కోసం ఇవాళ మంజూరైనవి. మరి తొందరగా పనులు చేసుకోవాలని చెప్పి నేను ఆయా గ్రామ సర్పంచ్లను, ఎంపీటీసీలు, అట్లానే మండల ఎంపీపీ జడ్పీటీసీ సభ్యులు కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇట్లా బయట పనులు అంటే మనకు బీటీ రోడ్లు కావచ్చు. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सरखे पर। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की क़यादत में रियासत तरक्की की राह पर गामज़न। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवासरेड्डी इन्होंने कोटगिर मंडल में डबल बेडरूम मकानात को इस्तिफादा कुनंदगान में किए हवाले। बरोज़े अफ्ताब 5 मार्च से माह शाबान का आगाज, 18 मार्च को होगी शब बरात। कामारेड्डी जिले मदनूर मंडल की सरकारी अखामती स्कूल की तालिब इल्म शिरेशा की नाश स्कूल की वाटर टैंक में बरामद। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। शरीफ हज़रत सैयद गाजी तातार शाह कादरी यमनुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बिनुल्लाह शरीफ का आगाज। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। बोधन की सरकारी स्कूल टीचर रजिया बेगम की फर्जंद निजामुद्दीन के साथ एक अजीब इत्तेफाक। पहले लॉकडाउन और अब फंसे यूक्रेन में मदद के लिए की वज़ीर-ए-आज़म और चीफ मिनिस्टर से की अपील। आर्मर की तरक्की के लिए मस्जिद फंड से मुख्तस करने पर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर मिले वो TRS जिले सदर जीवन रेड्डी ने CM KCR, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी और मुतहदा जिले MLC के कविता से किया इजहार तशक्कुर। शहर में तरक्याती कामों का आगाज। यौम ख़वातीन के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत व तोहफात की तक़सीम। अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता का मसरूफ तरीन दौरा निज़ामाबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।